of RAS. I'm in Triple E third year right now. And as you know, RAS stands for Robotics and Automation. Now, what is robotics? It's a study of robots. And what are robots? Robots are anything that replicates a human being, that may or may not replicate a human being. But yeah, they definitely make your lives easier in some way. Otherwise, it's just any useless machine. And you'll find a lot of videos on useless machines also. But we do not do that. We do not make useless machines. We make things that help stop something, help solve a problem. We design stuff, we do a lot of things, and everything involves the study of robots. So that's why we are called Robotics and Automation Society. Okay, people are still joining. Yeah. So whatever questions you have, just put these in the chat box, and Team Brass is here, so they'll reply you consecutively. Let's move ahead. So we are part of IEEE. Now, what is IEEE? I'm pretty sure you know it's an international society, but we do not represent all of IEEE. We represent the robotics section of IEEE, and सोसाइटी इज वन एक ही सोसाइटी है बट उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं इट्स अ ह्यूज सोसाइटी वी हैव प्रॉब्ली द बिगेस्ट एग्जीक्यूटिव टीम इन ऑल द कॉलेज okay so I told you who are we but what are we and why we do stuff so because we want to go and solve problems we want to become better versions of ourselves if you guys attended the orientation then probably you know me from there so there I talked about how we have a group of enthusiasts, hobbyists, people who really want to accomplish something because engineering में है, right? अब I know हम we are all in Bharatiya Vidyapeeth. I'm also in Bharatiya Vidyapeeth and किसी किसी का IIT नहीं हुआ है that's very obvious. But ऐसा नहीं है that has stopped us because we have taken engineering and we will not just bore ourselves with engineering. We'll find some good application of it. I'm sure you guys can hear me and understand what I'm trying to say. Hackathon is anything that involves a problem statement that we need to solve, and engineering is anything that requires a problem that we need to solve. So why I go to hackathons? Because I want to become a better engineer. That's there you get. And now further robotic competitions like IIT Bombay's Yantra. Yes, you heard that right. IIT Bombay conducts an annual competition that is now international that is called Yantra. You can Google it probably after this workshop, or you can ask us more about it. And okay, people are joining in. So yeah. Furthermore, we have around 4 to 5 teams right now in this call. Separate teams I'm talking about. Teams which are having 4 members each in this call, and they're all part of the RAS executive team we have all taken part and we have reached a certain stage now I do not mean taking part means that we have just put our name there we yantra involves solving particular section of task and after a few tasks there's a final task and when you complete it then you get an internship at IIT Bombay okay you don't even graduate from IIT but you get an internship at that point and that means that you'll interact with all the professors of IIT Bombay so it's a huge deal and yeah internships so Yantra is not the only way to grab internships, but it's one way to go, and it's probably the best way for any robotics person to go by. And internships is like it's a part-time job basically. And because when you go in fourth year, when you reach fourth year, then they'll ask you that what have you done? Just mugging up books, or have you achieved something? Have you made some projects? Do you have something? Then you can say that yes I have some field experience I've worked in that company and I've done this research or any internship so they are mostly paid unpaid both okay so I've given you plenty of knowledge till now let's move ahead yeah so it's a now why is this slide here because there's a notion going on we saw this in our earlier workshops that people want to upgrade their branches if you're in CS then you're great but if you're in IC or Triple E maybe I believe you remember I just told you I'm in Triple E and I'll tell you more about me furthermore but I was hoping that yes I'll upgrade my branch but by choice I did not upgrade my branch
because I found my happiness in this, in robotics. That's why I'm still here. And I got around 81% or something, but I got enough CGPA to definitely upgrade my branch. I did not, because it does not really matter unless and until you make an application out of it. Like electrical, software, mechanical makes robotics, and there's not CS here because CS is everywhere in electrical, in mechanical, also in software, also. Mechanical probably not, but in these branches, in electrical also you find coding. You will code, yeah. You will have to code or you will code. So have to is a very bad way of saying, because we have to do a lot of things today in these days, like attending classes and boring ourselves with professors that are teaching in software that they have no idea about, right? So that's part of your life, and I won't say that that's a very nice thing that people are teaching on outdated softwares and you're not getting any practical experience. Yeah, I won't say that, but trust me, you have the most time right now as compared to us. Okay, you'll have more time because you're at home. Otherwise, a lot of time would get wasted in commute. So, what you see in front of here are not Google images. These are our own projects. The center part where you see, if you can see my mouse, this is a watch type thing. Okay, so it's a taser. This is something that I made with my group of friends. Uh, it's if you know a taser, it's like a shocking mechanism that shocks you. Why did we make it? We made it as a women's safety device, so that can let's say somebody comes near you and you realize that this guy is not good, like this is like, I'm talking about women here, but okay, if male also feel dominated by other males, then you can also use it. But yeah, so the thing is, if you by the press of a button, the taser gets activated using this battery, and if that person comes near you, you can just point it at him. Once he just comes, if he tries to grab you, he'll get an amazing shock, and he'll not die definitely, but he'll get something. Okay. So coming down, left is a robo war. We'll explain you what a robo war is, because this is a robotics workshop, not just a boring TED talk. Right on the right, you see the things that led to this amazing thing. This is an actual hackathon type situation. This is my laptop, and these are all the stuff woven around it. And yeah, this takes time. Like, I won't say that just by end of this workshop you'll have all these things and you will become a hackathon winner. And yes, we did win that hackathon, the one I'm talking about, taser one. This is a gesture control car, the one where you see, if you ask it to come towards you using your hand, it will come to you. Okay, and it's very easy. This on the left, what you see as a robo war, this is not programmed. Let's move ahead. Shantanu, take over. Shantanu is in the team of RAS, and yeah, guys, go ahead. Hello, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. I am Shantanu from RAS BPIEEE. I am in second year ECA department. Welcome all to this workshop. I will be introducing you all to Arduino. I will tell you all you need to get started with Arduino, and then we will also do a hands-on exercise in which I will make you an we will make a LED blink and we will play with its brightness. Okay, so many of you here may have heard about Arduino. Some might not have a clue. So don't worry about it. We will start everything from the very beginning. Okay, so what is it? An Arduino is a circuit board which you can basically program. You can program it. You can upload your code into it, or simply you can say an Arduino is a mini computer. Okay. Some may call it a microcontroller, but technically it's not a microcontroller. Actually, it has a microcontroller built right into it. I will come to it later. So, as we are discussing about microcontrollers, so let me tell you two important terms here. First one is microcontroller, and the second is microprocessors. So there's a fundamental difference between these two. A microcontroller has various components like
CPU, memory, input output ports, etc. Whereas a processor contains only a CPU. So an example of a processor you may all have them in your laptops. It's an Intel i5 or i7, etc. Whereas a controller is like an Atmega 328. Okay. So why we are using this particular board to get started? So there are few reasons for that. Okay, so it's a great way to start with electronics because it's very beginner friendly. It's very cheap and accessible. You can buy one on Amazon right now. It's not very expensive compared to other programmable boards out there. It is made especially for you all enthusiasts. Secondly, it has a very beginner friendly software. The board is itself very easy to program. It works on Windows, Mac, Linux. The community is open source and it's very helpful. You can find all the content easily on the web. Also, there is not just one board, there are many Arduinos depending on what you need. So, moving on the types of Arduinos. So, the picture you can see here is an Arduino Uno. This is the most common standard board. Uh, there are more types of boards like Arduino Mega, Micro, or Nano. So Mega is like most if you want something more computationally powerful or you have a bigger project or you want more number of input output pins, so you can use Mega. If you want it to be a compact device, uh, if you want your Arduino to be used in projects which are like wearable devices, you can use Arduino Micro or Nano. So there are many other Arduinos depending on their applications. So yes, moving on to the next slide. Okay, so here is a label diagram of Arduino. I will not like name you, bore you with every part. I'm going to only tell you about the basic ones and that you will be using today. So the One thing top, here, Shantanu. yes, Uh, I'm pretty sure before diving into it, you were still very questioning that why to buy something and why to do this. Because, like I said, if you are trying to make solve a problem, then you definitely need to interact with electronics. And to interact with it, you have a very simple, cheap device, which is this Arduino. And such things like they don't take the amount of experience and the amount of ports you see here are probably like possible in your TV, in your any embedded system, any system that has electronics has such communication protocols uh, embedded into it. And if you work on it on this at this level, it's not very costly. You'll get to know a lot of things. And what happens is when you move ahead and you try to gain more field experience, like let's say you go for big projects, then you definitely will be aware of some protocols. That's why we are using it, and we use it because it's the easiest one. That's what we are telling you. And you'll by the end of the workshop, we'll tell you how many projects and from where you can find it. And because we have stuff already uploaded and already done for you, you just have to see it. That's been done by RS team. So just stay tuned, and you'll see at the end of the workshop we'll have a lot of things. So go ahead, Shantanu. Yeah. okay, good point. So yes, moving on to the various components of this board. Okay, so there are 13 main digital input output pins. So these pins can be used for input and output, as the name suggests, and they are digital. So they can take values like they can take two values, high and low. So high means around 5 volts, and low means 0 volts. Okay. Then there is TX and RX. These I will not be giving you detailed explanation here because they are some advanced concepts. Uh,
Basically, TX and RX stand for transmitter and receiver. So they are used for communication via Bluetooth or Wi-Fi. You can make projects where you can use your phone. Uh, you can use an app and use Bluetooth to communicate with Arduino. You can make a remote control bot, etc. You can use Wi-Fi to control LEDs, etc. So that was TX and RX. And then there is this, you can see USB plug. So using a cable, you can power it via your computer. Also, you can upload the code using this port. If you want to use an external battery supply, which if you are making a robot that needs to move, so you can't just connect it to the laptop and carry and move with the robot. You need an external battery. Okay, so that's what this external power supply is for. So you connect the battery to this, and it will power the Arduino. So the big horizontal thing, like black thing in the middle, is the main brain of this Arduino. It is a Atmega 328 microcontroller. Okay, so yes, and above it, it is the reset button. It is used to bypass the existing code so that you can upload the new code. And yes, there are 6 analog pins. So yes, this is the general overview of what's on the board. Okay. So yes, that's what. So this was the hardware. On the software front, which we will talk about later, there is a software called Arduino IDE for Integrated Development Environment that can be used to write code. You can save that code. So code in Arduino is called a sketch, by the way. Okay, it's a fancy name, but it is a standard. You call a code in Arduino a sketch. Okay, so we can save a sketch, write a sketch, and save it, and also we can upload it to the board through this software. It's not very hard to use. It's very intuitive, and we will explore it later. So what what do we use Arduino for? So there are many, like countless applications, from making a bunch of LEDs glow to making a autonomous robot, or even program an LCD display to play a game, say an arcade game. Okay, it really depends on your imagination. It really depends on what you know. Okay, Varun is asking TX. Yes, TX and RX is nothing but stands for transmitter and receiver. It's used for communicating via Bluetooth and Wi-Fi. So you can basically communicate with your Arduino using Bluetooth from your phone, etc. Okay. Yes. Coming back to the applications. Yes, I was saying that it has countless applications. It really depends on your imagination. So we will see in this workshop only. We have some projects for you. We have that we have made on our own. You can make anything with this Arduino. So, for example, in this picture, you must have seen that on Diwali people like buy LED strips and like put them in their houses. So why not make, you can like make one on your own. You can make an LED strip on your own. You can even like control it via control its intensity and light via Bluetooth. So yes, it has many countless applications. It's not for like industrial use. You will not find like industrial components using Arduino. Uh, it's for learning purpose. It's for making. It's for founding a base in robotics and electronics.
Yes, so that was about the applications. Okay, so moving on to a very important concept. It's very fundamental concept in the electronics. So, what first of all, what is a signal? Okay, signal, like in electronics and robotics, everything depends on a signal. Signal is basically maybe a current or voltage that varies with time. So it basically represents information. That's what we are doing, right? We are processing information. We are giving an input and processing it to receive a desired output. That's what we are doing in electronics. So in the world around you, everything is like analog. Okay, like the voice that's coming out of my mouth, the sound waves that I'm emitting, it's analog. The temperature is analog. Okay, the sunlight, the intensity of light coming from sun is analog. There's not whole digital signal around here in our lives. Okay, so we need something that can convert digital signals into analog so that we can play with them. Okay, so pulse width modulation, which PWM stands for pulse width modulation. It's like a technique to simulate analog signals from digital signals. So digital devices like Arduino, like they only understand one and zero. Okay, they are binary devices. But as you know, most of the world around us is analog. So we need something to do to solve that problem. Now let me tell you Due to how it works. PWM only, we have those uh, dimmer circuits possible. So Yes. yeah, Shantanu, go ahead. Sorry. So this and the graph you are seeing here, it's a digital pulse. Okay. So it's divided into equal intervals, and each interval is called one cycle or a period. All right. So the amount of time for which the signal is switched on is called the width of the pulse. So like if the switch is on for about t seconds, then its width will be then its pulse width will be t. All right. So this pulse width can be changed to obtain analog signals. So hence it is called pulse width modulation. Here we are changing the width of the pulse. Okay, so this is a square wave. It's a digital wave. So it's either high or zero. So we are varying the width of it to simulate analog signals. Okay. Yes. So these are some graphs here. I will explain them. So a duty cycle is the percentage of the cycle in which the signal is in on state. So if in a given cycle the signal is off throughout the cycle, then it's the 0% duty cycle. If it's on for about 50% of the time, then it's called 50% duty cycle. So basically, if like you are playing with an LED, if you want it to be 50% as bright, so you will operate it on 50% duty cycle. If you want it at its maximum brightness, then 100% duty cycle will play a role here. So we have discussed that what is PWM and how it works, but why do we need it in the first place? So I told you that everything around us is analog, from from the voice of my speech, from the temperature. Everything is analog. Okay, so take an example. If you have an electronic motor, DC motor,
but it only operates on either its maximum speed or like zero. So it will be not very useful, right? It will be not very it will not very useful. So you need something that you can control the speed. You can vary the speed. Okay. So yes, and this is where PWM comes in. Like uh, so, like application varies from like changing the brightness of an LED or changing the controlling the speed of a motor, controlling the loudness of a buzzer, etc. So yes, this is a very important like core concept in electronics. Some might know that there is another way to do this using potentiometer, but it's like very less efficient because it increases the resistance to decrease the magnitude. And we all know when resistance comes into place, there is a power loss. So PWM is generally more recommended than this one, than the potentiometer method. Yes, these are some applications of PWM, controlling the DC motor speed or controlling the brightness, intensity of an headlights of a car. Yes, So let's before now. we, Hello. yeah, Siddhant, just a second. Yeah. Before we move on to the hands-on, all of you, we are working on a hands-on thing. You will be able to make connections by yourself and run the circuit on Tinkercad. Okay, that's a online thing, and Siddhant will be explaining you about it. And before we switch on to that, PWM is something like, let's say you're trying to he has shared the link. So before you sign in and set up, I'll be talking. So so PWM is anything. Let's say you turn on, turn off, turn on, turn off something. You keep on doing that. That's just PWM. That's how you generate duty cycles. And the graph that you were shown, that was a static thing, but you will be able to see the live thing on your own system. So I would request you all to open your laptops and go to that particular link. And yeah, it's not sponsored or anything. We are just helping you out. Tinkercad hasn't told us to send you there. You can just go there. It's pretty amazing if you don't have the hardware for now. So yeah, Siddhant, go ahead. I'll stop sharing the screen and Siddhant will continue right now. गुड इवनिंग। आई एम सिद्धांत। तो अभी जैसे हमारे पास आर्डिनो वगैरह तो है नहीं, तो हम हार्डवेयर तो वैसे कर नहीं सकते, तो टिंकर कैड पे इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो टिंकर कैड बेसिकली जो पूरा आर्डिनो हम हार्डवेयर पे जो हम करते हैं उसे हम सिमुलेशन इस पे टिंकर कैड पे करेंगे। तो अब टिंकर कैड में हम पहले साइन इन करेंगे। साइन इन आपने कर लिया होगा, आप लोगों ने नहीं करा तो एक बार बता दो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। कोई हाँ भी मतलब दिक्कत आ रही हो तो कंपलसरी नहीं है, यू कैन हाँ जस्ट बता। वॉच एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम, और एल्स हम लोग आपको एक सेटअप वीडियो भी मतलब पूरा ट्यूटोरियल वगैरह सब बता देंगे। सो हाँ, सिद्धांत, कोई तो अगर कर रहा मैं है, कह अच्छा रहा ठीक है, 5 मिनट्स, श्योर वील वेट फॉर 5 मिनट्स, और meanwhile I'll just discuss if you have any doubts like PWM you studied. PWM is something that's in my syllabus and I'm in third year, so and I'm also in electrical. So that's something that might sound confusing, but it's not, totally not. So yeah, and you must have, if you drive vehicles, obviously you might, then you must see that if you are behind a motorcycle, then if the guy puts his leg on a brake, then there's a small LED that's on, like you know that this guy is scared, you know ये डर रहा है, इसने पैर रखा हुआ है ब्रेक पे। Okay, so that's because, और वो हल्की सी चल रही होती है, that's because that's an example. That's not definitely how TPWM was applied. It might or might not, but that's something that helps. Okay, because dimmer circuits are something that can be said to be a very inefficient. Dimmer circuit पता होगा कि किसी भी लाइट को डिम करना है, तो बेसिकली आप उसको inefficient बनाने की कोशिश कर रहे हो ना. So without compromising efficiency or keeping the life of that device intact, we keep it that way. So निशांत हो गया, और टाइम चाहिए किसी को खोलने के लिए? Done, sir, done. हाँ हो गया, अच्छा अच्छा, हो बढ़िया। गया, ठीक है ठीक है। Hello. सो हाँ अच्छा, हाँ। Sir, can you हाँ explain how that brake
example can be an example of PWM. How that what? How the light? Okay, No, sir. so That हाँ example which you use of brake. ब्रेक्स ना, हाँ ठीक है। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट दो हेडलाइट्स की जो बात होती है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनीथिंग एल्स, व्हेन यू वांट टू रिड्यूस द लाइट, ओके, रिड्यूस द इंटेंसिटी, सो व्हाट यू डू इज यू विल चेंज दोज ड्यूटी साइकिल्स। मतलब बेसिकली अगर आप किसी भी लाइट को, वो आप प्रैक्टिकल भी देख लोगे, मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, किसी भी लाइट को बार बार ऑन ऑफ करोगे तो एक पॉइंट नहीं आएगा जब आपको वो कम दिखेगी, थोड़ी पहले से कम ब्राइट दिखेगी, क्योंकि आप बीच में ऑफ भी कर रहे हो। तो पीडब्ल्यूएम यही होता है, बीच में ऑफ होता है ऑन होता है, ऑफ होता है ऑन होता है, और ये ऑफ ऑन ही ड्यूटी साइकिल्स है, जिसका एक बड़ा अच्छा सा ग्राफ दिखा था अभी, है ना। तो हम तो लोग एक उसको एलईडी को, हाँ हाँ डिम बोलो करने बोलो के लिए बोलो हम बोलो। तेज से टर्न ऑफ करेंगे बार बार। नहीं, हम नहीं टर्न मतलब ऑफ करेंगे, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, Through हम टर्न ऑफ software, नहीं करेंगे। that will be हाँ through software. थ्रू mainly through Or सॉफ्टवेयर, programming. That's what you are saying. yes, हाँ that will क्या, be through software. Through programming mainly Yes, coding. yes. बिल्कुल प्रोग्रामिंग, हाँ Okay. हाँ बिल्कुल प्रोग्रामिंग ही होगी। हम लोग कुछ भी ऐसा हार्ड कोड मतलब नॉर्मल वो वाला काम नहीं करेंगे, प्रोग्राम ही करेंगे। आपकी एलईडी बंद होके जलेगी, बंद होके जलेगी, एक वेव सी फॉर्म होगी। सो अगर अभी मोस्टली अगर दो तीन लोग भी सेटअप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। यूजुअली हम लोग हार्डवेयर खुद देते थे इन वर्कशॉप में, बट सिंस ये ऑनलाइन है तो हमने ये इस हिसाब से होस्ट किया है। वो सिद्धांत स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है। तो टिंकर कैट खोल लिया होगा सबने आई गेस। तो यहाँ पे सर्किट्स का ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, तो वो सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू सर्किट करेंगे पहले। अभी हम सबसे पहले जो प्रैक्टिकल करेंगे वो ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी करेंगे। तो ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी जो है वो एक तरीके से हेलो वर्ल्ड है रोबोटिक्स का। अब उसमें हम कमांड देंगे कि जिससे हम लोग सेट करेंगे कि वो कितने देर के लिए ऑन रहे और कितने देर के लिए ऑफ रहे, जिससे वो एलईडी लगातार ब्लिंक हो। जैसे दिवाली की लाइट्स वगैरह होती हैं हमारे घर पे, तो वो लगातार ऐसे ब्लिंक कर करके पैटर्न बनाती हैं। तो उसे हम कैसे सेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहला प्रैक्टिकल हम अभी पहला हैंड्स ऑन उस पे करेंगे। जो सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं किसी भी रोबोटिक्स के लिए वो ये है ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी। तब जाके जैसे शाश्वत ने दिखाया था अभी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, तो धीरे धीरे करके सब लोग यहीं से शुरू करते हैं एक ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी से। तो यहाँ पे एक क्रिएट न्यू सर्किट के बाद सर्च में हम जाके आर्डिनो पहले सर्च कर लो और आर्डिनो बोर्ड ले लो। यहाँ पे तुम्हारा ये है स्पेस वर्क है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आएंगे और सारी सर्किटरी तुम्हारी यहाँ पे बनेगी। तो ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी के लिए पहले हमने आर्डिनो ले आए स्पेस वर्क में। फिर उसके बाद जैसे यहाँ बेसिक कंपोनेंट है तो एलईडी दिख रही होगी, एलईडी ले आए। और हम एक कार्बन रजिस्टर ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ एलईडी है, एलईडी में यहाँ पे हम जब माउस पॉइंटर को होवर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ये कैथोड और एनोड। मतलब क्योंकि इसमें हम टच करके या एलईडी देख के पता नहीं लगा सकते कि कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है। जनरली जो हम लोग हार्डवेयर जब हम करते हैं तो एलईडी का टर्मिनल पहचानने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल जो है वो शॉर्टर होता है, और जो फ्लैट मतलब एलईडी की फ्लैटर साइड होती है, फ्लैट साइड जो होती है उसके पास होता है नेगेटिव टर्मिनल। और जो कैथोड होता है वो एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, वो लॉन्ग टर्मिनल होता है और ये आपका फ्लैटर साइड से दूर होता है एलईडी के। और जो कैथोड है अंदर की तरफ एलईडी के अंदर की तरफ उसका लेड फ्रेम होता है। तो लेड फ्रेम में उसके सबसे बड़ा वाला पार्ट जो 2 पार्ट में वो डिवाइडेड रहता है लेड फ्रेम। तो जो बड़ा वाला पार्ट है वो कैथोड से कनेक्टेड रहता है और शॉर्टर पार्ट जो है वो एनोड से कनेक्टेड रहता है। तो ये 3 तरीके हैं कैथोड और एनोड पता लगाने के लिए किसी भी एलईडी में। और यहाँ पे तो अभी हम पता नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे अगर हम हवर करते हैं माउस पॉइंटर टिंकर कैड में तो वो हमें खुद बता देता है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो कैथोड को हम ग्राउंड, यहाँ जीएनडी लिखा होगा टर्मिनल, जीएनडी लिखा होगा जीएनडी पिन आर्डिनो में, हम उससे कनेक्ट कर देंगे। और एक टर्मिनल हम एनोड का रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा टर्मिनल हम 13 पिन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये ऐसे ही करने के बाद डायरेक्ट नहीं चलने लगेगा, उसके लिए हमें पहले कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक कुछ भी कमांड नहीं देंगे तब तक ये हार्डवेयर चलेगा नहीं।
क्योंकि जब तक ये खुद ब खुद तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ से कोड पे जाएंगे। यहाँ पे तुम उसके बाद ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट पे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। हमेशा टेक्स्ट प्रेफर करना, क्योंकि हम जब आर्डिनो आईडीई में करेंगे, जब कॉलेज वगैरह खुल जाए अभी जब भी, तो जब हार्डवेयर पे करेंगे तो उसमें आर्डिनो आईडीई में हम टेक्स्ट में ही लिखेंगे, ऐसे ब्लॉक नहीं आएंगे कि हम ब्लॉक से उसमें मदद लें। तो अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा तो कोड खुद ब खुद लिखा आ गया वैसे, लेकिन हमें वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो पहला है वर्ड सेटअप। 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है जनरली कोड, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। तो वर्ड सेटअप में हम उसके पिन इनिशियलाइज कर देते हैं, सब कुछ डिफाइन कर देते हैं कि कहाँ से वो आउटपुट लेगा, क्या पिन है, क्या वेरिएबल है, सब कुछ हम वर्ड सेटअप में डिफाइन कर देंगे। फिर वर्ड लूप में हम उसे बताएंगे कि उसे करना क्या है। तो जैसे यहाँ पे वर्ड सेटअप पे हमारा हो गया पिन मोड 13 से ये कनेक्टेड है, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा और आउटपुट। फिर उसके बाद हम वर्ड लूप पे जाएंगे। वर्ड लूप में हम यहाँ पे डिजिटल राइट, मैंने उसे बोला कि 13 पे हाई, कि वो यहाँ पे उसका वोल्टेज हाई रहेगा 1000 मिली सेकेंड के लिए। डिले मतलब डिले 1000 लिखा है, तो 1000 मिली सेकेंड के लिए वो हाई रहेगा। और फिर उसके बाद डिजिटल राइट 13 लो, डिले 1000। तो फिर उसके बाद वो 1000 मिली सेकेंड के लिए लो वोल्टेज हो जाएगी, और उसके लिए मतलब यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में वो टर्न ऑफ रहेगा, इस ड्यूरेशन में वो टर्न ऑन रहेगा। और ये कोड लगातार रन होता रहेगा जब तक हम इस कोड को मतलब सिमुलेशन स्टॉप नहीं कर दें। तो जैसे हम अब यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, किसी ने ये कोड देखा है आज तक ज़िंदगी में, चैट बॉक्स पे लिखना? हाँ वैसे अभी देखा था, अभी एक वर्कशॉप अटेंड ही करी थी भैया। हाँ हाँ, वर्कशॉप करी होगी, अच्छी बात है। वो इतने चैट बॉक्स में मतलब यूजुअली प्रेफर करते हैं, बट कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि ये कोड एक तरीके से आर्डिनो का कोड है, ठीक है? आर्डिनो पे ये कोड चलता है, तो ये कोई लैंग्वेज नहीं है इन शॉर्ट। तो तुम कंफ्यूज मत होना कि मेरे को तो C++ आती थी, ये कौन सा नया कोड सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। इस कोड को ये अभी रन करेगा, और वो रन कर चुका है। एलईडी दिख रही है वो जलती हुई, ऑन ऑफ हो रही है, मतलब थोड़ा शायद हाँ, ऑन ऑफ हो रही है। ये नॉर्मल ऑन ऑफ हो रहा है, ये वो पीडब्ल्यूएम वाली चीज़ नहीं है जो मैं कह रहा था, वो भी आगे आएगी। तो ये जो इसने किया है ना यहाँ पे डिजिटल राइट से इसने उसको हाई किया है, बेसिकली उसको ऑन किया है 1 सेकंड तक, और डिजिटल राइट से इसने लो करा है, उसको ऑफ किया है 1 सेकंड तक, ताकि हमें डिफरेंस पता चले। अभी अगर आपने ये कोड लिखा है किसी ने भी, तो ये इस टाइम के साथ छेड़ के देखो, और और फिर स्टार्ट सिमुलेशन करो, फिर देखो क्या होता है। हो सकता है वो ऑन होती रहे, उसमें कुछ होता है, ठीक है? वो तुम्हें फिर और क्लियर होगा। और ये जो दिख रहा है ना, एग्जैक्टली यही सर्किट बनता है जो हम तुम्हें हाथ में देते थे, ये तुम्हें अपने सोफे पे बैठे हुए दिख रहा है, राइट? सो कोई भी अगर दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो अभी देख सकते हो। वरना ये जो इसमें 2 थे ना, सेटअप और लूप, ये बेसिकली 2 फंक्शंस हैं। सेटअप में, अच्छा, स्क्रीन नॉट विजिबल, आप पिन कर लो, सिद्धांत की स्क्रीन को पिन कर लो। आई गेस इसलिए नहीं दिख रहा तुम्हें, और मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए और नहीं दिख रहा होगा। शिट, ओके। हाँ, सिद्धांत को पिन कर लो, क्योंकि जो बोलता है उसकी स्क्रीन सामने आ जाती है, तो इसलिए तुम्हें नहीं दिख रही है। ये जो इसने कोड लिखा हुआ है, ये तुम्हें वहाँ मिल जाएगा एग्जाम्पल्स में। अच्छा, पिंड हिम, अच्छा, और किसी को भी ये इशू आ रहा है क्या कि टिंकर कैट की स्क्रीन नहीं दिख रही? सिद्धांत ऐसा कर, री शेयर करियो सिद्धांत अपना दिख स्क्रीन। रही है ऐसे पिन कर दे तो फिर दिख रही है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर दिख रही है ठीक हमें। है। लेआउट भी चेंज कर सकते हो, लेआउट में वहाँ पे रहता है वो हाँ, कि अभी अब जिसने कर ले, अब कर ले, ठीक है ठीक है, अब कर ले। ठीक ये है, ठीक शायद है, थोड़ा देखिए, सा नॉट विजिबल, ठीक है, 1-2 की दिक्कत। ठीक है, ठीक। हाँ, तो जरा डिले विले चेंज करा, कर हाँ, दिया सिद्धांत ने। यहाँ 3 और यहाँ देखो ये देखो, ध्यान दोनों से। अलग अलग हैं। हाँ, 3 सेकंड तक जल रही है, ठीक है? तो ये एक तरीके का तरीका है बात करने का। हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है, तो ऐसी ये एक लैंग्वेज है बात करने की आर्डिनो से। और इससे क्या पता चलता है हमें, हमने क्यों किया ये? लेट्स से हम, मैं एलईडी उखाड़ के मैं मोटर लगा दूँ, मोटर तो चलाई होगी ना नॉर्मल, कोई भी एक डीसी मोटर, वो भी ऐसी ऑन होगी, 3 सेकंड ऑन होगी, बंद हो जाएगी, ठीक है? तो इसे थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे डॉट्स की ये चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक है? और हाँ, और अब ये भी मतलब लग रहा होगा कि रजिस्टर क्यों लगाया, मतलब यहाँ पे क्यों, मतलब हटा दूँ तो क्या होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे जैसे हटा देता हूँ और डायरेक्ट 13 ही कनेक्ट कर देता हूँ, रजिस्टर की ज़रूरत क्या है। तो
इसमें टिंकरकैड में ये फायदा है, जैसे देखो यहाँ वार्निंग आ रही है, ठीक है, कि और ये ब्राइट भी ज्यादा हो गया है यहाँ पे एलईडी, यहाँ वार्निंग भी आ रही है, तुम्हें दिख रहा है करंट थ्रू एलईडी 52.3 मिली एम्पियर है, और रिकमेंडेड है कि 20 मिली एम्पियर रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एलईडी की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, और ये मतलब ऐसा टिंकरकैड तुम्हें बता रहा है, वार्निंग दे रहा है। अब लेकिन हार्डवेयर में तुम करोगे तो वहां पे सही में लाइफ टाइम कम हो रही है, वहां पे तुम्हारा कंपोनेंट खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फायदा है कि कंपोनेंट के साथ तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कंपोनेंट कुछ खराब नहीं होगा, वो वार्निंग दे देगा और तुम्हें बता देगा। तो रेजिस्टर इसलिए यूज करें जिससे कि करंट लिमिट हो सके और एलईडी इतनी एलईडी की लाइफ टाइम ना रिड्यूस हो जाए और तुम्हारे कंपोनेंट खराब ना होना शुरू हो जाए। तो सिद्धांत ये एक डाउट आया, बताओ। हाँ, क्या क्या डाउट है? कोड दिखा मैंने, आर्डिनो आईडी अगर खोल लो, मैं भी अपना आईडी खोल रहा हूँ, तो कोड तुम्हें से कैसे दिखा देंगे मिलेगा? आर्डिनो। हाँ, हाँ, ये बताओ। कोड, जैसे कोड तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसमें जैसे अब एग्जाम्पल भी आते हैं। अब ये मैं 1 सेकंड बंद करता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आते हैं। अगर किसी को मतलब दिक्कत हो, भूल गया हो कि यार कैसे लिखना होता है, या नोट डाउन मतलब नहीं करा हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लिंक का ऑप्शन आ रहा है। जब मैंने यहाँ स्टार्टर्स करके, ठीक है, करा, कंपोनेंट वगैरह आर्डिनो सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे ब्लिंक का ऑप्शन आ रहा है मेरा डायरेक्ट। मैं इसको हटा देता हूँ अभी, पूरा ये वाला जो मैंने बनाया था वो पूरा मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम रीसाइज कर सकते हैं कि हमारे की स्क्रीन फिट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ से ब्लिंक लाया डायरेक्ट। अब देखो कोड यहाँ पे वो ब्लॉक में करेगा, तुम टेक्स्ट में कर दो जिससे तुम्हें पता चले कि क्या लिखा है कोड में। अब देखो ये खुद का, इसने खुद लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाते हुए, बल्कि यहाँ पे ये समझा भी रहा है कि टर्न द एलईडी ऑन, हाई इज द वोल्टेज लेवल, ठीक है, टर्न द एलईडी ऑफ बाय मेकिंग द वोल्टेज लो। तो ऐसे तुम यहाँ से, जैसे यहाँ पे गए, वापस से दिखा देता हूँ, स्टार्टर्स आर्डिनो, और फिर इसमें बहुत सारे एग्जांपल है जो तुम उठा सकते हो डायरेक्टली, और वो कोड भी उसमें रहेगा, सारा है, ब्लिंक विदाउट डिले वगैरह सब है इसमें। हाँ, अभी एक बार इनको आईडी दिखा दूँ। हाँ, दिखा दे। हाँ, 1 सेकेंड गाइस, मैं तुम्हें रियल दिखाता हूँ जो एक्चुअल में होता है। ये दिख रहा है तुम्हें? तो ये मैंने जो खोला है, ये आर्डिनो लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। आर्डिनो, अब आर्डिनो तो पता चल गया होगा कि कुछ होता है। तो ये आर्डिनो आईडी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपिंग इन्वायरमेंट समथिंग। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ जाओगे ना, फाइल, जैसे मेरे में थोड़ा यूआई डिफरेंट लग रहा होगा, इंटरफेस थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट अगर तुम डालोगे विंडोज़ में तो तुम्हारा चल जाएगा। जैसे ये बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स आया, बेसिक पे गए, ब्लिंक, ठीक है, ब्लिंक खुल गया। और ये ब्लिंक है, ये जो सिद्धांत ने लिखा था वही है ना ये। हाँ, तो पहले ये होता है, उसके बाद थिंकरकैड वालों ने अपना एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना लिया, और उस पर उन्होंने थोड़ा बच्चों को सिखा दिया। तो हाँ, दिखा था तुम्हें ब्लिंक या नहीं दिखा था किसी को? नहीं दिखा तो बताओ एक बार। अच्छा, वो शायद खुला नहीं होगा ब्लिंक, अलग से खुल गया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये स्क्रीन शेयर किया, जो मर्जी। तो ये नया खुला हुआ है, ठीक है। तो ये सेटअप और लूप तो कांस्टेंट रहेंगे, बीच में जो कहानी आती है, जैसे तुमने मान लो और एलईडी बढ़ा दी, वो बदल जाती है, ठीक है, कि यहाँ पे पिन मोड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मतलब लिखने का तरीका है, पिन मोड, क्योंकि आर्डिनो ने कहा लिखना है तो लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़े या अभी इस पे और कोई डाउट है? एलईडी ब्लिंक में कुछ डाउट है तो बताओ, वरना हम फिर पीडब्ल्यूएम भी देखते हैं आगे। पीडब्ल्यूएम का क्या एक मतलब हाँ, जो पीडब्ल्यूएम ब्राइटनेस पूछ ऐसे रहा था इंक्रीज उसके लिए एक वो आएगा, प्रैक्टिकल, हाँ, हैंड्स ऑन। तो लाइक सेटअप और लूप में कोई डाउट है कि ये क्या मतलब है इनका? वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। अच्छा, वर्ड सेटअप में इनिशियलाइज होता है, मतलब हम पूरा बताते हैं कि कौन सा पिन हम यूज करेंगे, क्या वेरिएबल रहेंगे। अब जैसे मेरे को मैंने 13 पिन पे कनेक्ट कर रखा था वहां पे, तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि मैंने 13 पिन पे कनेक्ट करा हुआ है, क्योंकि बिना बताए उसे पता थोड़ी चलेगा कि वहां पे 13 पिन पे कनेक्टेड है एलईडी। तो उस पे आउटपुट लेने के लिए हमें वॉइड सेटअप में सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर वॉइड लूप में
कोड जो हमारा है वो एक तरीके से कैरी आउट हो रहा है, वॉइड लूप लगातार वही कोड चलता रहेगा कि हमने उसे एक टास्क दे दिया परफॉर्म करने के लिए, कि कुछ भी मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें ये करना है तो वो वॉइड लूप में होगा। ऐसे हम मान सकते हैं कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप में ये फर्क रहेगा। उसके बाद पीडब्ल्यूएम पे बढ़ूं फिर मैं आगे, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो। हाँ, और ये ना जैसे एक जनरल क्वेश्चन भी होता है कि ये सिंपल टिंकर कैट पे काम करते रहते हैं, ठीक है, या फिर कई बार लोग पूछते हैं कि हार्डवेयर लेना चाहिए, मतलब सिमुलेशन पे कर लिया मेरे को आर्डिनो आ गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना अभी कि एलईडी लग गई, जल गई, हो गया, क्या होता है तुम्हारी एलईडी फूक गई मान लो। अब टिंकर कैट तो बहुत अच्छा अपना बनाता है, उसकी तो एलईडी फूकेंगे नहीं, तुम्हारी हो सकता है कुछ लफड़ा है और फिर तुम कहीं कंपटीशन में चले गए और तुम्हारा वहाँ पे एलईडी की जगह कुछ और लगा है, वो चल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि तुम टिंकर कैट पे पढ़ के आओ, तुमने हार्डवेयर नहीं देखा, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम सोचोगे आर्डिनो खराब मेरा, जो कि होता नहीं है। लेट मी टेल यू, आर्डिनो खराब करना काफ़ी टफ है, ठीक है, मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ। आर्डिनो थोड़ा सा भी अगर वो हो जाए, कुछ चलना वलना कुछ तुम्हें लग रहा है, कोई और पिन चल जाएगी उसकी, ठीक है। नहीं तो उसकी एक आईसी होती है ना ब्लैक कलर की, उसने बताई थी अभी, सबसे बड़ी ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है उसमें, उसको निकाल के दूसरी लगा लो, वो फिर चल पड़ेगा, और वो होती है 10-15 रुपए की, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ें हो गई, बाकी और अब हार्डवेयर पे पीडब्ल्यूएम। ये हाँ। है, हार्डवेयर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टिंकर कैट पे जाके तुम, अब जैसे ये तो हमने कर दिया एलईडी ब्लिंक वगैरह, अब जैसे शाश्वत ने बहुत सारे बॉट्स वगैरह दिखाए थे, एलएफआर हो गया, लाइन फॉलोइंग रोबोट, जो हम शुरू करते हैं, मतलब कॉलेज में भी करवाते हैं वर्कशॉप में, तो वो तुम अब टिंकर कैट पे नहीं बना सकते कि टिंकर कैट पे वो चला के तुम्हें दिखाएगा, चले एकदम चलते हुए दिखे बॉट तुम्हें, ऐसा नहीं होगा। वो जब तक तुम हार्डवेयर पे नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि दिक्कत कहाँ आती है, कनेक्शन कैसे करनी है। तो वो सब हार्डवेयर इसलिए जरूरी है, हर चीज टिंकर कैट पे होगा नहीं। टिंकर कैट बस इसलिए है कि जब तुम्हारे पास चीजें नहीं है तो थोड़ा बहुत शुरू करने के लिए, जब बिल्कुल बिगनिंग में चाहिए कि कैसे क्या होते हैं, तो एक बेसिक स्टार्टिंग के लिए टिंकर कैट ठीक है। पर आगे जब रोबोटिक्स पूरा अच्छे से मतलब बॉट वगैरह बनाने लगेगी तब दिक्कत आएगी, तब इसलिए हार्डवेयर उसके लिए जरूरी है। तो हाँ, वो ऐड करते हैं। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है स्क्रीन दिख तो रही है विजिबल तो। नहीं है तो बता दो हाँ, अगर दिख रही नहीं। है। ठीक है, अब देखो ये पीडब्ल्यूएम वाला ये है प्रैक्टिकल, ठीक है। पीडब्ल्यूएम जैसे शांतनु ने अभी समझाया कि ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पीडब्ल्यूएम, ठीक है, मोटर वगैरह। तो हम अभी बेसिक देखते हैं, इसमें फेड फेड करते हैं ये एलईडी को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो टर्मिनल लाइन है वो देखो, यहाँ पे हर पे यहाँ पिन्स हैं, डिजिटल पिन्स हैं सारी आर्डिनो की। तो अलग अलग नंबर के आगे ऐसे लाइन सी बनी हुई है, तो जो जो लाइन वाली है वो पीडब्ल्यूएम पिन्स है। तो पीडब्ल्यूएम के लिए हम कभी भी जो यूज करेंगे वो यही पिन यूज करेंगे जिनके जिन नंबर के आगे ऐसे लाइन सी बनी हो, ठीक है। तो टर्मिनल लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एनोड को रजिस्टर के थ्रू, और ब्रेड बोर्ड में ये वाली लाइन जो है, जैसे अभी जो ग्रीन लाइन पूरी खिंची हुई आ रही है वो सेम वोल्टेज पे होती है। ये भी लाइन सारी सेम पोटेंशियल पे होती है, और जैसे ये लाइन आ रही है अब, ये तुम्हें दिखा रहा है टिंकर कैट, तो ये वाली लाइन सेम वोल्टेज पे होंगी और ये वाली सारी सेम पोटेंशियल पे होगी। ऐसी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो 9 पिन को मैंने रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, फिर रजिस्टर को यहाँ कनेक्ट करा, उसका दूसरा टर्मिनल उसके देखो ये सेम पोटेंशियल पे है, तो ये सारे एक ही, मतलब यहाँ से हम रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर को इसके वायर से डायरेक्ट ऐसे लपेट के ना करके ब्रेड पोर्ट पे ही डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे है तो वहां से वो कनेक्ट हो जाएगी। और फिर उसके थ्रू हमने यहाँ पे एनोड से कनेक्ट कर दिया, और कैथोड को हमने यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जीएनडी से। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कोड हम देख लेंगे। कोड जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने पहले उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि इंट एलईडी पिन 9, हमने डिफाइन कर दिया कि 9 पिन हम ले रहे हैं। और मतलब पहले हम यहाँ पे लिख रहे थे कि 13 आउटपुट, तो उसकी जगह मैंने पहले शुरू में ही लिख दिया उसे वेरिएबल लेके
कि एलईडी पिन जो है वो 9 रहेगी, तो आगे मैं 9 ना लिख के एलईडी पिन जहाँ पे एलईडी पिन लिखूंगा, जहाँ जिस भी कोड में, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कोड कि ये 9 है। वॉइड सेटअप, वॉइड लूप सबके लिए। तो वॉइड सेटअप में हम जाएंगे, फिर पिन मोड वही सेम जैसे हमने अभी ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी में करा। अब वॉइड लूप में हम करेंगे फॉर, हमने फॉर लूप एक लगा लिया है, ठीक है, वो आगे तुम पढ़ोगे। तो डिम हम यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस जो है वो 0 से, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि 0 से लेके 255 तक ये वैरी होती रहेगी +5 के इंक्रीमेंट के साथ। मतलब 0 से शुरू होगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते बढ़ता चला जाएगा, और 30 का डिले रहेगा, ठीक है। तो 30 मिली सेकेंड का डिले रहेगा। और फिर उसके बाद दूसरे में हमने ये लिखा है कि 255 से 0, तो मतलब पहले ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज होती जाएगी, फिर उसकी डिक्रीज होते जाएगी धीरे धीरे। तो अब हम कोड एक बारी सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 255 वाली बात का कुछ आइडिया नहीं होगा कि ये रट्टी वाली बात हो गई। अरे हाँ देखो, तुम्हें दिख रहा होगा ये, पहले देख लो जो ग्राफ दिख रहा है, बड़ा ही सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब मेरे को फर्स्ट ईयर में पता होता, मैं तो बहुत ही सही, मतलब हाँ। तो ये जो 255 इसने बोला ना, बेसिकली जब हम जो मैंने बोला ना ये ऑन हो जाएगा और ये पेन में लगा दिया, और ये जो आर्डिनो है ना, सिद्धांत थोड़ा जूम कर सकता है आर्डिनो पे, जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक से होल्स है, तो ये पेन है। कनेक्शन कहीं करोगे ना, तो वो इसने ये जो करा हुआ है ना, यही होता है कनेक्शन। ये सिद्धांत ने जो कनेक्शन किया हुआ है, एक्चुअल कनेक्शन भी ऐसे ही दिखता है, ठीक है। एक तरीके से इसको उठा के ले जाओ, यही यही तुम्हारा है हार्डवेयर। कोई कुछ कह रहा था? स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? सिद्धांत को पिन किया हुआ है? पिन करे एक बार यार मेरे को। अच्छा ओके। सेम प्रॉब्लम भैया, पिन किया हुआ है। पिन किया हुआ है, एक सेकंड में वापस से करता हूँ। एक्चुअली वो आईडिया सिद्धांत दिया कि तो दूसरी वाली से करके देखो एक बार। हाँ हाँ, एक सेकंड। हो रहा है अब। हो गया। तो पहले जो दिखाया था समझ आया? मतलब कोड वगैरह दिखा था तुम्हें कि नहीं दिखा था? नहीं, कोड नहीं दिखा था। पिछले वाले में भी नहीं दिखा था, एलईडी ब्लिंक भी नहीं दिखा था। अब दिख रहा है? बोल दो, मतलब चैट में बोल दो। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये मतलब मैंने बस यही समझाया कि जैसे यहाँ पे ना फॉर लूप ले लिया पहला, ये मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए, तो 0 से 255 तक ये बढ़ता चला जाएगा जब तक 255 आएगा नहीं, ठीक है। वो एलिमेंट बताइयो, वो जो तूने लिया है टिंकरकैड में, इसको क्या तूने कौन सा ग्राफ लिया? ऑसिलेटर, ये क्या हुआ है ना? हाँ, डीएसओ वगैरह जब आगे देखोगे देख लो। एनालॉग राइट फंक्शन क्या करता है? ये एक तरीके से जो एनालॉग वैल्यूज है, ठीक है, उसके जैसे डिजिटल राइट देखा था, ठीक है, वो हाई करता है ना, तो ऐसे एनालॉग राइट में जो वैल्यू होगी एनालॉग में, अब एनालॉग डिजिटल पूछोगे मेरे से तो मैं बताऊं, डिजिटल इज लाइक 0101, ठीक है, बाइनरी। एनालॉग इज लाइक 0 से 255, एक तरीके से पूरी की पूरी नंबर लाइन सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो 0 से 1 इज एनालॉगस टू 0 से 255, ठीक है। सिमिलर सी कहानी है कुछ कुछ। तो इसने डिम वैल्यू जहाँ तक दे रखी है, जो मुझे भी दिख रही है यहाँ पे, दिख रहा होगा स्क्रीन, है ना? तो जैसे इसने भी बताया कई बार, ये धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, ठीक है, और कम कर रहा है। अब क्या है, मैं 0101 भी कर सकता था, ऑन ऑफ है ना, बट मुझे क्या करना है, मेरे को ना उसकी हल्की सी डिम करना है उसे। डिम का मतलब समझते हो ना, बंद करना है और ऑन करना है, ठीक है। तो वो एकदम वो जो दिवाली की लाइट है यार, हमेशा की तरह वो कुछ होती है ना, जो एकदम फ्लो में बढ़ती हैं और कम होती हैं, बढ़ती हैं, वही होगा। हाँ, धीरे धीरे डिम होती है, फिर धीरे धीरे। सिद्धांत तूने स्टार्ट कर दिया था क्या ये हाँ, क्या स्टार्ट बोलते कर दे, हैं? सिमुलेशन स्टार्ट कर दे। लोग सिमुलेशन देख के ये देखो, ये तुम्हें दिखेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगी और एकदम से कम हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, यही कह रहा था मैं। और जैसे जैसे बढ़ रही है, थोड़ी देर के लिए इसमें जैसे कांस्टेंट भी दिख रही है, वो ना बढ़ रही है एक्चुअली हमारी नेकेड आई को, इसलिए हार्डवेयर होता तो और अच्छा दिखता है। बट ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ध्यान से थोड़ी देर देखो तो ज्यादा बढ़ जाती है और फिर कम होती है, ठीक है। हायर लोअर हायर। शांतनु ने भी जैसे बताया ना, वो ग्राफ दिखाया होगा तुम्हें कि पॉजिटिव विड्थ तुम्हारी ड्यूटी ऑन साइकिल, ड्यूटी ऑन मतलब तुम्हारी टर्न ऑन टाइम है। तो देखो, जब ज्यादा विड्थ हो रही है तो ज्यादा ब्राइटनेस है, और जब कम हो रही है तब वो बिल्कुल बंद हो जा रही है।
तो उससे भी देखोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, अब ये क्यों बताया हमने, जैसे अगर तुम गाड़ी को रेस देते हो, ठीक है, तो उसमें होता है ना वो स्लोली बढ़ी, स्लोली कम हुई, मतलब धीरे-धीरे जो 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 एकदम स्मूथनेस आनी चाहिए कर्व में, एंड डिजिटल में स्मूथनेस इतनी नहीं आती। ऑन ऑफ अजीब सा कहानी चलती है, ठीक है। ये एक्चुअली जो दिख रहा है ना, बाद में समझोगे, बट ये थोड़ा सा डिजिटल को एनालॉग बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसको बनाओगे तो एक साइन वेव टाइप बन रही है, जो मैं कहानी बोल रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। बाकी ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम और प्रोजेक्ट्स पे बढ़ते हैं जो हमारे टीम के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ भैया अगर इसमें किसी भैया को डाउट डाउट था। है तो बता देना। ये सर्किट शेयर कर दे सिद्धांत इनसे, ये वाले हाँ, तूने मैं यहाँ पे दोनों कर लिंक देता डाल दे। हूँ मीट पे, हाँ ठीक है, दोनों लिंक। हाँ, लेकिन मीट पे। वो लिंक तभी चलेगा जब साइन इन कर लोगे, ठीक है, हो सकता है ना चले साइन इन के बिना, तो वो देख लेना, मैं तुम्हें मेनली अगर हम 5 से ज्यादा वैल्यू देते हो उसमें इंक्रीमेंट में तो हमें दिखता ना पीक उसमें मेरे ख्याल से। तुम ट्राई जो करो, अभी मैं कह तुम्हें रहा कुछ, था तुम्हें कांस्टेंट क्या दिख होगा, रहा है। जल्दी हो जाएगा। हाँ, तुमने कितनी दी वैल्यू? नहीं मैंने अभी डाली नहीं है एक्चुअली, मैं तो अच्छा फोन पे अच्छा अटेंड अच्छा कर रहा अच्छा। हूँ, तो मतलब जैसे 11 और 10 डालेंगे तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ना सिर्फ एक तरीके से जीरो में +11 हुआ। अभी क्या हो रहा था, 5 5 धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी मैं 11 करूंगा तो ज्यादा बड़े बड़े विंडो लेके दौड़ेगा वो, ठीक है, मतलब नहीं ज्यादा लंबी जैसे एक सर छलांग ने मारेगा। कहा ना, जैसे वो कांस्टेंट दिख रहा था, मैंने जब पूछा सर ने कहा मैं नहीं दिखता नेकेड आई से, वो मैं समझ गया। लेकिन अगर हम वैल्यू थोड़ी ज्यादा देंगे तो मेरे ख्याल से मेरे दिखेगा हिसाब वो। से तो तुम कम कर दो और फिर देखो। और बल्कि उसमें तो ये ना प्रैक्टिकल की चीज़ है, जैसे तुम इसको अगर सिद्धांत कम कर, नहीं 15 कर दे। यहाँ पे अभी अभी हाँ 15 कर ठीक है। दे, और फिर गैस करो क्या होगा। तो जो मेरे से बात 15 कर रहा था वो पहले बताओ। हाँ मतलब बढ़ेगी ज्यादा, मतलब एकदम पहले डिम हो जाएगी जल्दी से। ठीक ठीक, चलो हो जा शुरू। ये पहले से फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है? फास्ट फास्ट लग लग रहा रहा है। है हाँ, बिल्कुल। मैं वही कह रहा था ना, क्योंकि वो छलांग लंबी मार रहा है। उसको पहुंचना कहाँ है, 0 से 255 तक ऐसे करके। मतलब वो अपर साइकिल में भी, लोअर साइकिल में तो भाई माइनस भी हो रहा है, ठीक है, जितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, जो वाली चीज़ है। थोड़ा सा अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी, लेकिन ये इससे अच्छा एग्जाम्पल है नहीं नहीं वो पीडब्ल्यूएम तो का। हम ट्राई करेंगे तो आ टू बी जाएगी एक बार। फ्रैंक। हाँ, हाँ, वो ये हो सर्किट भी शेयर नहीं कर रहा दे है। सिद्धांत। हाँ, और फोन पे हो ना तो वो हो क्या रहा है, हाँ स्क्रीन छोटी दिख रही है, हाँ एलईडी भाई, छोटी दिख रही बिल्कुल हाँ। एक्चुअली है, मैं जब पार्क लैपटॉप में पे था, तुम वो तो करोगे ना screen पे। अटेंड कर रहा था मैं आपकी मैं एक बार। हाँ, मैं हाँ, समझ वो गया। तो तुम्हें मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी यूट्यूब पे। हाँ, सिद्धांत वो रैस की वो शेयर कर दे पीपीटी, रैश की जो पीपीटी जहाँ भी। पे वीडियो वीडियो है ना, उस पे और वीडियो और अगर हम प्रोजेक्ट्स पे। मतलब एडिशन उसमें अलग रखें और सब्ट्रैक्शन कम का रखें अलग से। हाँ हाँ, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हाँ, हाँ प्लस तो प्लस, हाँ हाँ, सही। भैया वो बेसिकली मैंने बोला ना, फर्स्ट हाफ डीपीडीटी सेकंड हाफ। बोल बोल। वो डीपीडीटी कौन सा ले रहा है, मतलब साइट पे सर्च करा दो डीपीडीटी स्विच आ रहे, डीपीडीटी पता नहीं क्या क्या आ रहा था तो। डीपीडीटी हाँ क्या वो होता है? अभी वो आगे अभी आएगा, आएगा, अभी बता अभी रहा आएगा, सब आएगा। और भैया आप जो एक कॉन्सेप्ट कह रहे थे कि मतलब जहाँ पर पिन है वही पीडब्ल्यूएम शो करेगा, हाँ हाँ, क्या हुआ? ऐसा क्यों, मतलब वो ना, क्या अच्छा, रीजन है उसके पीछे। नहीं वो ना, वो उन्होंने बनाया ऐसे है और अगर तुम, ये आर्डिनो ऊनो था, एक आर्डिनो मेगा होता है, ठीक है। अब इनके नाम मैंने नहीं रखे, लेकिन ये मेगा में क्या होता है, पीडब्ल्यूएम सारी होती हैं, बड़ा होता है मेगा का नाम, सिंपली नाम। तो ऊनो सबसे पॉपुलर रहता है और कुछ ही पे पीडब्ल्यूएम होती हैं। उसका रीज़न तो वही जाने जिन्होंने बनाया है, लेकिन उनको शायद फ़ायदा कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। नहीं मतलब जैसे किसी पिन को पीडब्ल्यूएम के लिए एक्सेप्टेबल करने के लिए हमें करना क्या होता है, मतलब वहाँ उसमें पे। अलग क्या होता है डिफरेंस। देखो डिफरेंस ये है, जो जैसे पिन नंबर लिखा है 13 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, इनके आगे एक स्लैश साइन बना है। वहां पे साइड में मेंशन है पीडब्ल्यूएम, इसके लिए ये साइन है। और वही सेम साइन पिन नंबर के साथ मेंशन है। उससे हमें पता चलेगा कि वो क्या है। नहीं वो तो एक पता चलने का होगा, मतलब इंटरनल का डिफरेंस है उसमें, मतलब जो मतलब पीडब्ल्यूएम में के लिए हमें वो रिक्वायर्ड क्या ना, है मैं चीज। बताता हूँ, मैं समझ गया। वो एक चीज़ होती है बेड बैंगिंग। अब ये चीज़ तुम थोड़ा उससे भी देख सकते हो। बेड बैंगिंग होती है जिससे पल्स जनरेट होती है, कि कितना फ्रीक्वेंटली एक पिन ऑन ऑफ कर सकती है डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली। तो हर पिन को ऐसा नहीं बना सकते। अब वो एकदम घुसोगे तो वो एसटीएलडी का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर सब बोर हो जाएंगे यार। हाँ, अभी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा हम आइडिया दे देते हैं जो अभी तक यहाँ पे हैं और जिन्हें मज़ा आ रहा है। तो आगे चलते हैं। सिद्धांत नेक्स्ट स्लाइड पे चल।
So, hello guys, I'm Jesh Goel. I'm from second year ट्रिपल ई ब्रांच. सो जो आपके सामने इस वक्त अभी स्क्रीन पे है, ये एक रोबोट है, रोबो वॉर का. बेसिकली ये जो रोबोट बनाया था, ये मेरे सीनियर ने बनाया था. जिनसे इंस्पायर हो गए, मैंने भी सेम इसी का एक रोबो बनाया. बट इसका एक सिमिलर वर्जन, स्मॉलर वर्जन, कि वो बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए काम है. नेक्स्ट स्लाइड करना है मेरी. देखो, ये उसका है स्मॉलर वर्जन. इसके अंदर जो मोटर यूज हुई है और जो भी हमारी यूज हुआ है, वो इससे पहले वाले का स्मॉलर वर्जन यूज हुआ है. अगर वो 3000 आरपीएम दे रहा है, तो ये 1500 आरपीएम. बेसिकली जो हमारा एक कंपटीशन होता है इस कॉलेज में, बी वेस्ट के नाम से, उसके अंदर इस रोबोट के लिए काफी कॉम्पिटिशन्स हैं. जैसे बेसिकली जो हमारे पास था, वो था रोबो वॉर था, रोबो कॉर्प था. कई सारे प्रोजेक्ट केस थे, उसमें ये काम आया था. तो भैया हमने. हाँ जी. ये ये बी वेस्ट हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है. ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये एक बीवेस की ही है. दो सामने आप रोबोट्स हैं. बेसिकली स्मॉल बॉल से सॉकर खेल रहे हैं. बेसिकली आरसी गाड़ी किसने चलाई है, ये फर्स्ट ईयर में बना चुका है वो. अ, अ, सिद्धांत पीछे करना स्लाइड. सो अब बेसिकली इसमें था क्या. इसमें सिर्फ हमने 4 मोटर यूज करी थी. इसमें हमने 4 मोटर यूज करी थी और सिंपल वायरिंग से डीपीडीटी स्विच को यूज करके हमने ये बॉट बनाया था. जो डीपीडीटी हितेन तुम पूछ रहे थे ना, इसमें हमने वो यूज करा है. जो इसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, ये सारा काम हमने डीपीडीटी स्विच के थ्रू करा था. तो ये वायर्ड मतलब पूरा वायर्ड मैकेनिज्म था, मतलब वो कंट्रोल हाँ, करने का इसमें. ये पूरा वायर्ड मैकेनिज्म है और इसके अंदर कोडिंग का कोई पार्ट नहीं है. सिंपल वायरिंग कनेक्शन है बस. अच्छा, ओके ओके. बेसिकली जो स्कूल टाइम पे जिनके पास सीएस वगैरह नहीं थी, उनके लिए बेस्ट चीज है ये स्टार्ट करने के लिए. रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है सिंपल वायरिंग के थ्रू प्रोजेक्ट तैयार करना हो तो. और जिन पर थी भैया. वो इनसे ट्राई करें, वो भी बनाए, ये भी बनाए. अब ये देखिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है. शांतनु. शांतनु. हाँ, ये हाँ. ऑब्स्टिकल अवॉइडर बॉट है जो मैंने घर पे बनाया था. और लाइक ये इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है आगे, जो डिस्टेंस मेजर करता है. और इसकी रेंज है 2 सेंटीमीटर से अराउंड 400 सेंटीमीटर की इसकी रेंज है. इसी के अंदर ही काम करता है. तो मतलब अगर आगे कुछ ऑब्स्टिकल आएगा, जैसे मैं प्रोग्राम कर दूं कि अगर 5 सेंटीमीटर पे कुछ है, तो फिर मैं इसको रोबोट को टर्न करवा दूं. तो ऐसे एल्गोरिथम मैं अपना कोई भी सोच के इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ये मतलब मैं हर कंपोनेंट को मैं बता देता हूँ. ये तो 4 व्हील्स लगे हुए हैं. सबसे आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर है. ये भी काफी चीप है, मिल जाएगा आपको आसानी से, अवेलेबल होता है. बीच में ये लगा हुआ है, आर्डिनो लगा हुआ है. इसकी बैटरी जिसके नीचे है वो दिखेगी नहीं, इसके नीचे बैटरी है. और मोटर्स भी नीचे हैं, वो भी दिखेंगी नहीं. सेंसर का एंगल नहीं होता, किसी ने पूछा हुआ है. बट हाँ, मेरे पास एक ही था. आप 3 आई मीन टू से कि ये जैसे कितना रेंज को कवर करता है एंगल में? एंगल में नहीं करता, क्योंकि ये एक्चुअली अल्ट्रासोनिक काम कैसे करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता है. और फिर मैं भी वो पूछ रहा, मतलब ऑब्स्टेकल कितनी रेंज तक वो कवर कर लेता, मतलब देख लेता है, या इतने तक आप ऑब्स्टेकल अगर कह है. रहे हो तो 1 सेंटीमीटर राउंड होता है, और वो भी इतना एक्यूरेट नहीं होता बिकॉज ये बहुत ही मतलब काइंड ऑफ चीप हॉबी सेंसर है. ये लेकिन ये सेंसर बात ज़रूर है.
हाँ, एक सेकंड, ये बात ज़रूर है कि जो जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और जो होते हैं, उनमें जो सेंसर्स यूज़ होते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रासोनिक का, वो यही सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, सेंसर ज़रूर थोड़ा सस्ता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम अल्ट्रासोनिक वो सेल्फ ड्राइविंग नहीं बना रहे हैं, बट एक बिगिनिंग है। ये सेंसर मतलब एक स्मॉलर वर्जन है जो सिर्फ दिखा रहा है, एक तरीके से प्रेजेंट कर रहा है जो चीज बड़ी चीजों में शिप्स वगैरह में यूज होता है, ये उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हमने इस चीज में यूज करा है इस तरीके से। बाकी मेनली अल्ट्रासोनिक का यूज तो आप सबको पता ही है। ये एक इसके दो आईज हैं, एक आई से ये सेंसर मतलब भेजता है रे, और दूसरे से एक्सेप्ट करता है, उससे इसे पता चलता है कि कितने दूरी पे क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर फ्री वे है, उस हिसाब से ये मूवमेंट करता है। डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी, जैसे अगर सामने ऑब्स्टेकल आ गया तो, और फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। शांतनु? एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंसी होती है स्पेशल, वो एमिट करता है। एक उसका जो दो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक एमिटर और एक रिसीवर। तो जब वो रिसीव कर लेता है, तो जो उसका टाइम जो टोटल है उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, और फिर वो फॉर्मूला लगा के, वो आपको बाद में बता देंगे, फॉर्मूला लगा के और स्पीड ऑफ साउंड से मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। आपने सुना होगा सोनार एक्सेट्रा, ये एप्लीकेशन है इसकी। मैं भी वरना ये ये शांतनु ही पढ़ाएगा आपको ये चीज़, और पढ़ा चुका है, वो मिल जाएगी कहाँ पढ़ा है इसने, है ना शांतनु? तुमने पढ़ाया था ना? हाँ, एक्चुअली अब हाँ, आपको वर्कशॉप के एंड में बताएंगे। हाँ। तो आई गेस नेक्स्ट स्लाइड करना, वीडियो है ना इसमें शायद? एक चीज और, प्रीवियस हाँ, स्लाइड में जाना एक बार। हाँ, ये एक्चुअली घर में ही मैंने कुछ सी प्रॉप्स पड़े थे, उनको यूज करके एक मेज टाइप बना दी। मेरे पास उस टाइम एक ही था, आप चारों तरफ लगा के अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो आपको फिर ऐसे बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक ही था, आप 4 लगा सकते हो, आपको चारों डायरेक्शन से आपके पास इनपुट्स आते रहेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है। हाँ, ये लिंक सिद्धांत ये कॉपी कर दे। ये जो लिंक है इसमें हमारे अभी जो हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब कोइंसिडेंस कह लो, जो मर्जी कह लो, हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, शायद तुम्हारे भी हैं। तो ऑब्वियसली वर्कशॉप्स तो नहीं हो पाएंगी, बट तुम्हें अगर कंटिन्यू करना है, तुम्हें और सीखना है, तो RS की टीम ने बनाए हुए सारे ट्यूटोरियल्स, यू कैन फाइंड देम एट दिस लिंक। और मे बी ग्रुप्स में हो, अगर एडेड नहीं हो तो हो जाओ, वहाँ पे टीम है, तो कोई डाउट्स आए कुछ है वहाँ पोस्ट कर सकते हो। तो तो भैया सर, आप कैन यू सेंड दिस भैया यार, लिंक ऑन भैया व्हाट्सएप हूँ ग्रुप? मैं, सर ओके नहीं। भैया, भैया क्या आप इन लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दोगे? भेज देंगे, बेस्ट। भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इनको भी यू बता कैन, देंगे। आप चेक भी कर सकते हो, ये BBIEEE की जो यूट्यूब चैनल है उस पे मिल हाँ, जाएंगे आपको। राइट राइट। IEEE का एक कॉमन चैनल है, उस पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। हाँ, कॉमन जो चैनल पे आपका सब ओके है, भैया। जो प्लेलिस्ट आपका बनी हुई है। सेशन हुआ है ये भी वहीं मिलेगा। हाँ, और Friends वगैरह बेसिकली भी। अब हमने मोस्टली वर्कशॉप ख़त्म कर दिया है, और मैं इतना ही कहूँगा कि इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग इन दिस डायरेक्शन और काम करते रहोगे, देन तुम्हें एक टाइम आएगा, यू डोंट इवन हैव टू बाय ऑल दी स्टफ, ठीक है? तुम खुद ही जहाँ काम कर रहे होगे वो तुम्हें खरीद के दे देगा, ठीक है? जो मैं चेयरपर्सन हूँ, वाइस चेयरपर्सन है, वो फ्रीलांसर है रोबोटिक्स में, और वो एम्बेडेड सिस्टम्स में काम करता है, एंड मतलब वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो इंटर्नशिप भी नहीं कर रहा है, और वो वहाँ से लोगों के हार्डवेयर पे काम करता है। सेम गोज़ फॉर मी। मैंने आर पाई, रास्पबेरी पाई कुछ होता है जो तुम्हें थोड़ा क्लियरली आगे आगे फ्यूचर में पता चलेगा, बट वो सब चीज़ें जो हैं स्टार्टअप्स एंड दीज इंस्टीट्यूशंस ये आपको खरीद के देती हैं इफ़ यू हैव स्किल। सो दैट्स ऑल। SSL लोग हैं RS में, एंड आई बिलीव दैट्स ऑल। एंड करते हैं यहाँ पे इस नोट पे, थैंक्स एंड बेस्ट भैया, ऑफ लक। हाँ, थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय। आई बाय होप भैया। सबने एंजॉय थैंक किया। यू सो मच आशुत भैया।